ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ اردو سے وابستہ خواہش مند ہمارے دفتر بھارتی ڈیجیٹل واقع غلام چوراہا نزد وشوا شانتی کالج 5 تا 7 بجے شام رابطہ کریں یا کال کریں 9553521111۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی۔ پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے۔ تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص لمبی نماز پڑھاتا ہے، اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نصیحت میں غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کو دین سے نفرت دلاتے ہو، سن لو، جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے، کیونکہ اس میں بیمار، کمزور اور ضرورت مند سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب العلم صفحہ نمبر 94۔ آغاز سے قبل ایک نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر۔ کسان سیڈ ڈیولپمنٹ سے استفادہ حاصل کرے، سیڈ چیئرمین انویش ریڈی۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے اتر پردیش مدرسہ ایجوکیشن ایکٹ 2004 کو دی آئینی قرارداد۔ اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائنا نے مارکیٹ کمیٹی چیئرمین و ٹریفک اے سی پی کے ہمراہ ٹریفک کنٹرول روم کا لیا جائزہ، غیر قانونی تعمیرات کو ہٹانے کی دی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل سے۔ نظام آباد شہر میں فٹ پاتھ کی تعمیر اور تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک پر کوئی کنٹرول نہیں۔ متعلقہ حکام کو فوری طور پر غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کی اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن نے دی ہدایت اور کہا کہ سڑکوں پر سبزی کاروبار جاری رہنے کی وجہ سے ایمرجنسی کے دوران ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی۔ اربن ایم ایل اے دھنپال سوریہ نارائن اور مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین ایم گنگا ریڈی نے شہر میں ٹریفک کنٹرول کا جائزہ لیا۔ میونسپل کمشنر اور ٹریفک اے سی پی کو فوری طور پر غیر قانونی تعمیرات ہٹانے کی ہدایت کی، کیونکہ غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کا کوئی کنٹرول نہیں۔ حکام کو تجویز دی کہ سڑکوں پر دکانداروں کو فوری طور پر کسان منڈی منتقل کیا جائے، کیونکہ وہاں ایسی صورتحال ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں ایمبولینس بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ سڑکوں پر سبزیاں فروخت کرتے رہتے ہیں۔ شہر میں اس کے علاوہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے ریتو بازار میں سبزی فروشوں کے لیے سٹالز مختص کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میونسپل حکام کچرا اٹھانے میں کوتاہی کرتے ہیں تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ مزید برآں اس جائزہ میٹنگ میں میونسپل کمشنر دلیپ کمار اور ٹریفک اے سی پی نارائن نے جائزہ میٹنگ میں حصہ لیا۔ سیٹ تنظیم چیئرمین انویش ریڈی نے تمام برادریوں سے کہا کہ وہ تلنگانہ سیٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو اپنا تعاون دیں۔ اعتراض کیا کہ سیٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن گزشتہ 10 سالوں میں گزشتہ حکومت کے غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے اپنا اثر و رسوخ کھو چکی ہے۔ نظام آباد اور کاماریڈی کا مشترکہ ضلع رابطہ اجلاس
चेयरमैन की सदारत में मरबूत ज़िले दफातर के मीटिंग हॉल में सीड डेवलपमेंट कंपनी, महकमा ज़राअत, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के चेयरमैन और सीईओज़ की हमरा मुनाकिद हुआ। चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने तमाम बरादरियों से कहा कि वो तेलंगाना सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को अपना ताउन दे, जो कि सरकारी शोबे में किसानों के मफादात को अव्वलीन तरजीह के तौर पर क़ायम किया गया है। यासंगी सीज़न 2024-25 के दौरान सीड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए काश्तकारों को मुतल्लिक़ा फसलों की काश्त के लिए दरकार बीज की फ्राहमी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादले ख्याल किया गया और तजावीज़ व आरा हासिल की गई। इस मौके पर स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने 1976 में उस वक्त की मुत्तहिदा रियासत में स्टेट सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क़ायम की थी, जिसका मकसद किसानों को आला पैदावार हासिल करने के लिए मियारी बीज फ्राहम करना था। इसके मुताबिक सीड डेवलपमेंट कंपनी ने मियारी बीजों के लिए एक नाम होने का एतमाद हासिल किया। ताहम ये एतराज़ किया गया कि सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गुज़िश्ता 10 सालों में पिछली हुकूमत के गैर जानिबदाराना रवैये की वजह से अपना असर रसूख खो चुकी है। उन्होंने कहा कि जाली और नाखिस बीजों की वजह से काश्तकारों को कई जगहों पर नुकसान उठाना पड़ रहा। इस बदहाली को रोकने और किसानों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़रिए किसानों को मियारी बीज फ्राहम करने का फ़ैसला किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इससे काश्तकारों के साथ साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और सीड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा पहुंचेगा और कहा कि सिर्फ निज़ामाबाद ज़िले में यासंगी सीज़न के दौरान तकरीबन 5.5 लाख एकड़ रकबे पर फसलें काश्त की जाएंगी और 1,20,000 कुंटल बीज की ज़रूरत होगी। उन्होंने महकमा ज़राअत और कोऑपरेटिव पर जोर दिया कि वो तेलंगाना सीड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तंजीम के ज़रिए बेहतर मियार के बीजों की तैयारी और किसानों को बरवक्त फ्राहम करने के मकसद में ताउन करें। उन्होंने काश्तकारों से कहा कि वो गांव-गांव वसी मुहिम चलाकर पब्लिक सेक्टर सीड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से फ्राहम करदा बीजों के फ़वाइद के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए इक़दामात करें। निजी कंपनियों की बीज के सरमायाकारी के ज़ाया होने का खतरा है। ऐसे मामलात में प्राइवेट कंपनियां जिम्मेदार नहीं है। चेयरमैन अन्वेश रेड्डी ने राय दी कि प्राइवेट कंपनियां गैर जिम्मेदारी से काम कर रही क्योंकि सीड एक्ट में बहुत सी खामियां हैं। हुकूमत इस मामले का नोटिस लेगी और बीज के कानून में जामा तब्दीलियां करेंगी। उन्होंने कहा कि वो सबके ताउन से मुश्तरका ज़िला निज़ामाबाद को सीड हब के तौर पर तरक्की देने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। इस मीटिंग में डीसीसीबी के चेयरमैन रमेश रेड्डी, आईडीसीएमएस के चेयरमैन ताराचंद नायक, आईडीसीएमएस के चेयरमैन ताराचंद, साबिक चेयरमैन साई रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफिसर श्रीनिवास, ज़िला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर वाजिद हुसैन दीगर भी मौजूद थे। అందించే స్థాయిలో తగ్గిపోవడం, పూర్తి స్థాయిలో అందించకపోవడంతో కొంత విత్తనోత్పత్తి విత్తన మార్కెట్ అంతా కూడా తగ్గినటువంటి గత 5 జరిగింది. సో ఆ గ్యాప్ను పూరించాలి. గతంలో బిఫోర్ బైఫర్కేషన్ కంటే ముందు ఏ రకంగా అయితే సారకపు విత్తనాలు అంటే ఏపీసీ బ్రాండ్ ఉండేనో ఆ రకంగా దీన్ని మళ్ళీ ముందుకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి ఆ రకంగా ముందుకు తీసుకుపోవాలంటే ఈ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మొత్తం సహకార సంఘాల సహకరిస్తే తప్ప ముందుకు తీసుకుపోలేదు. కాబట్టి వాళ్ళందరితో కూడా ఇవాళ ఎందుకు తీసుకురావాలంటే తగ్గిపోయింది, ఏం చేస్తే ముందుకు తీసుకుపోతాం అనేటువంటి ఆలోచనతో కూడా పూర్తి స్థాయిలో విశ్లేషణ చేసినాం. ఆ గతంలాగానే రేపు కూడా సహకార సంఘాల ద్వారా విత్తనోత్పత్తిని చేసి రైతులకు వారి ద్వారా అందిస్తాం అనేటువంటి మాట వాళ్ళు చేసిన మాకు కూడా విత్తనాలు ఇస్తే మేము రైతులకు ఇస్తామనేటువంటి మాట చెప్పారు. మీ ద్వారా రైతాంగాన్ని మేము విజయం చేస్తా ఉన్నాం. గడిచినటువంటి 10 సంవత్సరాలలో సారకాపూర్ విత్తనం అనేది నిజామాబాద్ జిల్లాలో బ్రాండ్, ఏబీసీ అనేది అప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రంలో బ్రాండ్. ఇది బైఫర్కేషన్ అయిన తర్వాత తగ్గిపోయింది. ప్రైవేట్ కంపెనీలన్నీ కూడా పుట్ట పొరుగులో వెలిసి ఇవాళ వాళ్ళ ఆధిపత్యాన్ని ఇక్కడ వహిస్తూ ఉన్నాయి. బట్ ఇది ప్రభుత్వ సంస్థ. ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా రైతాంగానికి ఆదుకోవడానికి ఇబ్బందులు ఉన్నా కొంత ఆలస్యమైన కానీ ఆ దిశగా రైతుల కోసం పనిచేస్తా ఉంది ప్రభుత్వం. ప్రభుత్వం సంబంధించిన సంస్థ అందిస్తున్న విత్తనాలను రైతులు కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి మాట చెప్తా ఉన్నాం. ప్రైవేట్ కంపెనీలు చేసేటటువంటి మోసాలు
వాళ్ళు చేసినటువంటి విత్తనానికి రీసెర్చ్ విత్తనం తప్ప ఎక్కడ కూడా మూల విత్తనం ఉండదు. మేము ఇచ్చేటటువంటి విత్తనం అంతా కూడా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చినటువంటి విత్తనాలు తీసుకొని రైతుల ద్వారా విత్తనోత్పత్తి చేసి రైతులకు అందిస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది ఒక బాధ్యతమైనటువంటి పద్ధతిలో మేము చేస్తా ఉన్నాం. ప్రైవేట్ ఏదైతే షేర్లు తెలిసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. మొత్తానికి అసలు మీ ద్వారా నేనైతే ఇక ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను, అట్లాగే రైతాంగాన్ని కోరుతా ఉన్నాను. ఏదైతే సీడు యాక్ట్ ఉందో అసలు సీడ్ యాక్ట్లోనే చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. ఇవాళ ఏ కంపెనీ వాళ్ళే సర్టిఫై చేసిన పరిస్థితి ఉన్నది. అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం సర్టిఫై చేయాలనేటటువంటి రూలే లేదు. సీడ్ యాక్ట్లోనే లోపం ఉన్నది. సీడ్ యాక్ట్లో మార్పు వస్తే తప్ప విత్తన పాలనలో మార్పులు రావు, రైతుల పరిస్థితి మారే పరిస్థితి లేదు. విత్తన చట్టంలో మార్పు వస్తే తప్ప రైతులకు మేలు జరగదనే విషయం చెప్తా ఉన్నాను. ఇన్ని పుట్టగొడుగుల 100 కంపెనీలు వేస్తాయి. 100 కంపెనీలు आरमूर के ज़िरात नगर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ऑफिस पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से आगाही के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख मिटपल्ली ज़िला जगतियाल के ज़ेर एहतमाम 9 और 10 नवंबर को होने वाले एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप के पोस्टर की रस्म इजराई। अवाम इस वर्कशॉप में शिरकत करें। सदर सैयद इकरामुद्दीन का बयान। आरमूर के मोहल्ले ज़िरात नगर में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ऑफिस पर एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आरमूर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सदर सैयद इकरामुद्दीन ने कहा कि नौजवानों को गुमराही और इर्तिदादी फितनों से आगाही के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत शाख मिटपल्ली ज़िला जगतियाल के ज़ेर एहतमाम 9 और 10 नवंबर को होने वाले एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप के पोस्टर की आरमूर में रस्म इजरा बदस्त मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर ने खिताब करते हुए कहा कि आप अहबाब के इल्म में ये बात ज़रूर होगी कि सोशल मीडिया के इस मसरूफ़ तरीन दौर में एक अहम मसला जो मुस्लिम मुआशरे के लिए नासूर की हैसियत इख्तियार कर चुका है, वो उम्मत का बातिल फितने और गुमराह फ़िरक़ों के लिए निवाले तर साबित होना है। आए दिन गुमराह फितनों की बहुतात और मिलत मुसलिमा का इससे मुतासिर हो जाना एक ऐसा मसला है जो फ़िक्रमंदी जी शऊर मुसलमानों को चैन से सोने नहीं देता। ऐसे में ज़िम्मेदार उम्मती होने का बुनियादी तकाज़ा ये है कि आगे बढ़कर सिराते मुस्तकीम से गुमराह होने वालों को राह रास्त पर लाने और उनको समझाने में कोई कसर बाकी ना रखी जाए। इन्हीं फ़िक्रों के साथ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की हिदायत पर एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप 9 नवंबर की असर के बाद था 10 नवंबर की बाद नमाज इशा बिस्मिल्लाह मस्जिद मिटपल्ली में रखा गया है, जिसमें अपने अपने फ़न में माहिर जयद उलमा इकराम के अलावा हज़रत मौलाना मोहम्मद अरशद अली क़ासमी साहब सेक्रेटरी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना और आरिफ हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान साहब मुफ्ताही दामद बरकातहुम सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा के मुख्तलिफ गुमराह कुन ईमान सोज फितनों के ख़िलाफ़ खुसूसी तरबियती खिताबात होंगी। लिहाजा तमाम बरादरान इस्लाम बिलखुसूस स्कूल्स कॉलेजेस के टीचर्स लेक्चरर्स स्टूडेंट्स ताजरीन मुलाजमीन एडवोकेट्स डॉक्टर्स से गुजारिश की जाती है कि इस कीमती वर्कशॉप में शिरकत फरमाकर इर्तिदादी फितनों से आगाही हासिल करें। मौसम के पेश नज़र बिस्तर भी साथ लाएँ। तमाम शुरका के लिए खाने का नज़्म रहेगा। इस मौके पर मौलाना सैयद इकरामुद्दीन मुफ्ताही सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत आरमूर मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन नायब सदर मुफ्ती मोहम्मद अमीन पाशा क़ासमी शरीक मोतमद अब्दुल समद हाफिज़ मोहम्मद मिसबाउद्दीन हाफिज़ मिर्ज़ा सफ़ीउल्लाह बेग शरीक थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इज़्ज़ाम, जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि इस सोशल मीडिया के मसरूफ़ तरीन दौर के अंदर मुसलमानों के ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल तरीन फ़ेल हो चुका है, चूँकि सोशल मीडिया के अंदर और वेबसाइट्स के अंदर इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बहुत से ऐसे वेबसाइट्स और ऐसे चैनल हैं जिसकी वजह से मुसलमानों धोखा खाकर अपने ईमान को ख़तरे में डाल ले सकते हैं। इन ऐसे फितनों से मुसलमानों के ईमान को हिफाजत करने के लिए मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना व आंध्रा की जानिब से जगह जगह एक रोज़ा तफ़हीम ख़त्म नबूवत वर्कशॉप मुनक़्क़िद किया जा रहा है।
اسی ضمن میں اس مہینے کی 9 اور 10 نومبر 2024 کو ہفتے کے دن مغرب کی نماز سے لے کر اتوار کے دن عشاء کی نماز تک ایک روزہ تفہیم ختم نبوت ورکشاپ بسم اللہ مسجد میڈپلی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس میں تمام مسلمانوں سے خاص کر اسکولز کالجز کے اسٹوڈنٹس، لیکچررز، ٹیچرز، تاجرین، ایڈوکیٹس، وکلاء اور سیاسی سماجی قائدین سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد کے ساتھ اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ورکشاپ میں شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس ورکشاپ کے اندر آپ کی شرکت فرماتے ہوئے ارتدادی فتنوں سے آپ آگاہی حاصل کریں، اپنے اور اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں۔ جزاکم اللہ خیرا فاحسن۔ ڈویژن 12 میں سڑک کے تعمیری کاموں کا آغاز، میئر ڈی نیتو کرن نے رکھا سنگ بنیاد۔ مقامی MIM کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر نے میئر و دیگر کا کیا استقبال۔ ترقیاتی کاموں کے لیے MIM کی مؤثر و کامیاب نمائندگی، اقلیتی علاقے ترقی یافتہ علاقوں میں ہو رہے تبدیل۔ شہر کے 11ویں ڈویژن میں 10 لاکھ مالیتی سڑک کے تعمیری کاموں کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں میئر نیتو کرن نے مہمان خصوصی شرکت کی اور کاموں کا آغاز کیا۔ 12ویں ڈویژن MIM کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر نے میئر نیتو کرن، ڈپٹی میئر محمد ادریس خان، محمد شکیل فاضل ٹاؤن صدر، محمد فیاض الدین صدر مجلس کے علاوہ تمامی کارپوریٹرز کو شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ میئر ڈی نیتو کرن نے تعمیری کاموں کو معیاری مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ٹاؤن صدر نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین اقلیتی علاقوں کی ترقی کے لیے میونسپل کارپوریشن میں نمائندگی کرتی ہے اور مجلس کی میعاد میں ترقی سے محروم اقلیتی علاقوں کو ترقی پذیر بنایا گیا۔ MIM کی بروقت اور مؤثر نمائندگی کی وجہ اقلیتی علاقوں میں سڑکیں، ڈرین، برقی، پانی، کچرے کی نکاسی، تمام سہولتیں عوام کو دستیاب ہے۔ مزید فنڈ سے علاقوں کی ترقی کو یقینی بنانے کا اظہار کیا۔ مجلسی کارپوریٹر میر ارشاد علی سمیر کی ڈویژن کی ترقی کے لیے جدوجہد و اقدامات کی ستائش کی گئی۔ جیسا کہ آج مارننگ آورس میں MIM کے 5 ڈویژنوں میں جملہ 63 لاکھ کے کاموں کا اناگریشن کیا گیا، ویسے ہی آج شام کے اوقات میں ہمارے میئر صاحبہ کے ہاتھوں ڈپٹی میئر کی موجودگی میں ڈویژن نمبر 32 اور 12 میں 10 لاکھ کے CC روڈ جو خالص منسپلٹی کا فنڈ جو ہے جنرل فنڈ، اس کے تحت یہ آج کام لگایا گیا ہے۔ امید کہ یہ کام جلد سے جلد ہوگا۔ یہ ڈویژن نمبر 12 خصوصاً یہاں پر من جملہ جتنا بھی یا دوسرے ڈویژنوں میں جتنا کام لگا اس سے زیادہ کام یہاں پر میر ارشاد علی صاحب کے کہنے پہ یہاں لگایا گیا ہے، اور کیونکہ یہ جو وارڈ ہے نئی آبادیوں میں شمار ہوتا ہے، اس میں زائد فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم زیادہ فنڈ لگائے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے کام ابھی رکے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ 11 مہینے ہو چکے حکومت تلنگانہ نے منسپلٹی کو کوئی ابھی تک فنڈ نہیں دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ فنڈ جیسا کہ گزشتہ جو حکومت والوں نے ہمیں فنڈ دیا تھا خصوصاً نظام آباد اربن کا ڈیولپمنٹ کے لیے، ابھی وہ فنڈ ابھی تک نہیں آیا۔ ہم امید کرتے ہیں کیونکہ وہ گزشتہ جو لگائے گئے سو فنڈ کا جو کام ابھی رکے ہوا ہے اس کو بھی جلد سے جلد ری اسٹارٹ کریں تاکہ محلے کی عوام کو سہولت پہنچا سکے۔ عوام کو سہولت پہنچانا ہر وہ حکومت کا کام ہے، عوام کو جو وعدے کر کے آیا اس کو نبھانا حکومت کا کام ہے، لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے جب سے تلنگانہ میں حکومت میں آئی ہے نظام آباد کے لیے کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ریلیز نہیں ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں ایٹ لیسٹ ریلیز نہیں ہوا تو نہیں، پرانے جو لگے ہوئے کام خصوصاً 12 ڈویژن میں کم و بیش 1.25 کروڑ کے کام ابھی بھی ہونے کو ہے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کام وہ ورکس بھی جلد سے جلد اسٹارٹ ہو اور زائد فنڈ دیے تو خصوصاً یہ سلم ایریاز جو ہے سلم ایریا میں عوام کو راحت پہنچانے کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اذان بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ پھر سے آپ لوگوں سے اور ایک کام کو لے کر آگے تفصیلات ہویں گی۔ A3 کرکٹ زون، ارہم گارڈن، نزد بابنسا پہاڑی،
रूबरू वादी मदीना का शानदार इफ्तिताह डिप्टी मेयर इदरिस खान ने किया। मेयर, डिप्टी मेयर वो कॉरपोरेटर्स की शिरकत, प्रोप्राइटर आर अब्दुल अजीज़ व एम.ए. मशहूद ने किया मेहमानों का इस्तकबाल। नौजवान खेलों पर तवज्जो दे, ए3 का आगाज़ खुशायन ख़त्म, शुरका के खिताबात दी मुबारकबाद। शहर के 11वें डिवीज़न नज़द बाबन साहब पहाड़ी रूबरू वादी मदीना अरहम गार्डन के इहाते में शानदार ए3 क्रिकेट जोन का आगाज़ किया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरिस खान, फ्लोर लीडर टाउन सदर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की और डिप्टी मेयर ने रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीर इरशाद अली समीर, कॉरपोरेटर एम.आई.एम. मोहम्मद ज़कीउद्दीन, अब्दुल अली बागपान, मोहम्मद मुस्तहसिन, मोहम्मद रफ़ी, खलील अहमद व दीगर मौजूद थे। मेहमानों का आर अब्दुल अजीज़ और एम.ए. मशहूद ने शानदार इस्तकबाल किया, शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। मेहमानों ने मुबारकबाद दी और खेलों के मैदान में बॉक्स ग्राउंड के आगाज़ को खुश आइन कदम बताया और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मेहमानान ने बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए कुछ अच्छे शॉट्स लगाए और अपने खिताब में कहा कि दौर हासिर जदीद तकनीक का दौर है और नौजवान नस्ल मुसलसल सेल फोन्स के इस्तेमाल से जिस्मानी कमज़ोरियों और जहनी उलझन का शिकार हो रहे। खेलों के मैदान में आगे आने का मशवरा दिया और ए3 क्रिकेट जोन से इस्तेफादे की ख्वाहिश का इज़हार किया। तेलंगाना में ख़ानदानी सर्वे के ज़िमन में शऊर बेदारी के लिए कुल जमाती मुशावरती इजलास का इनेकाद। निज़ामाबाद 4 नवंबर सदाए उर्दू एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर की जुमला तंजीमों के इश्तिराक से एक अहम मुशावरती इजलास डिसेंट फंक्शन हॉल खिला रोड पर मुनाक़िद हुआ, जिसमें शहर के मुख्तलिफ फलाही तंजीमों ने शिरकत की। जलसे इब्तिदा मुफ्ती फसीउद्दीन की ख़िरात कलाम पाक से हुई। इस मौके पर मिर्ज़ा अफजल बेग तेजान, सदर सदाए उर्दू सोसाइटी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं तमाम फलाही तंजीमों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहा कि आप लोगों की 2023 और 2024 के इलेक्शन के वक्त जो मोहल्ले वारी सतह पर जो खिदमात अंजाम दी वो काबिल सताइश है। जैसे वोटर ID कैंप का इनेकाद अमल में लाते हुए जो शऊर बेदारी की और इलेक्शन में वोटों के तनासुब को बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा किया, वो काबिल मुबारकबाद है। फिर आज दोबारा आप अहबाब को जहमत देने की वजह 6 तारीख को हुकूमत की जानिब से शुरू होने वाला सर्वे है और ये सर्वे हमारे लिए और हमारी कौम के लिए बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर भी आप तमाम फिर एक बार मोहल्ले वारी सतह पर एक कमेटी तश्कील देते हुए अपने मोहल्ले वालों के नामों का इंदराज कराएं और 3 बरादरी सैयद खान मिर्ज़ा को छोड़कर बाकी तमाम बरादरी को BCE में लिखवाएं, जो वक्त की अहम ज़रूरत है, जिससे हमारी कौम को और मिल्लत के नौनिहालों को तालीमी और माशी पसमानदगी से दो चार होना ना पड़े। इस मौके पर दिगर तंजीमों के अफराद मौजूद थे। जलसे की कार्रवाई डॉक्टर समी अमान ने की और आखिर में मौलाना सैयद समीउल्लाह की दुआ पर जलसे का इख्तिताम अमल में आया और इफ्तिखार निहाल ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। 6 तारीख से एक सर्वे शुरू होने जा रहा है। वो सर्वे के लिए भी सारे हिंदुस्तान के उलमाए-ए-दीन, मशाइखीन और सियासी समाजी रहनुमाओं की हर जगह से अपील आ रही है कि इस इलेक्शन ये जो सर्वे है, ये सर्वे हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमारे पास लापरवाही होने की वजह से हम कभी सेंसस में हमारा अपने लोगों के नाम का इंतराज नहीं करते, हम काहे नहीं करते, हम सुस्ती करने की वजह से आज जो हालात है आप वो हालात से बखूबी वाकिफ हैं। लेकिन खुसूसन 12 साल के बाद आज ये सेंसस होने जा रहा है। इस सेंसस के अंदर मैं तमाम सोसाइटीज के जिम्मेदारान को, तमाम शहर के मशाइखाने निजामाबाद को और तमाम उलमाए-ए-दीन से, मशाइखीन से, सियासी समाजी कायदीन से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि
6 तारीख से जो सर्वे शुरू होने जा रहा है, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे मोहल्ले में आएंगे, तो हम उनको ये करना है कि उनका हम साथ दें, हमारे पड़ोसियों का नाम का इंदराज कराएं, अपने मोहल्ले वालों के नाम का इंदराज कराएं, ऐसा कि कोई एक घर में नहीं छूटना चाहिए। भाई हमारी एक छोटी सी कोशिश है, और आपकी ये कोशिश इंशाअल्लाह आने वाले कल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। नोट, मर्दाना कमज़ोरी का भी इलाज किया जाएगा। वक्फे के बाद दोबारा इस्तक़बाल है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को आईनी करार देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया। अदालत के इस फैसले के नतीजे में रियासत के 16,000 मदारिस में ज़ेर तालीम 17 लाख तलबा को राहत हासिल हुई। साबिक़ा फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को गैर आइनी करार देते हुए कहा था कि ये क़ानून सेकुलरिज़म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जिसमें कहा गया कि ये क़ानून आइनी है और मदारिस को तालीमी मियार के तहत लाना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस DI चंद्र की सरबराही में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की समाअत के दौरान कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। उन्होंने कहा कि यूपी हुकूमत को मदारिस में तालीमी मियार के ज़वाबित नाफिज करने का हक़ हासिल है। निज़ामाबाद ज़िले में अनाज खरीदारी मराकिज़ के खुलने से किसान खुश। वो सरकारी मशीनरी मराकिज़ पर रहकर किसानों के लिए बग़ैर किसी दिक्कत के अनाज खरीदारी के अमल की निगरानी करें, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। निज़ामाबाद ज़िले में रियासती हुकूमत ने ख़रीफ सीज़न के दौरान किसानों के ज़रिए काटे गए अनाज की ख़रीदारी के लिए मराकिज़ का आगाज़ किया। किसान बग़ैर किसी परेशानी के मराकिज़ से अनाज खरीद रहे। हर रोज़ ज़िला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर और सीनियर सिविल सप्लाई ऑफिसर ख़रीदारी मराकिज़ का गैर एलानिया मुआयना कर रहे हैं। वो किसानों से बात कर रहे हैं और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त कर रहे हैं। किसान मराकिज़ पर हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली सहूलियात से मुतमईन है। किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि किसानों को वक्त पर चावल की ख़रीदारी के मराकिज़ खोले गए और धान की 2320 रुपये की गैर मामूली कीमत फ्राहम की गई। इस मौके पर अनाज खरीद मराकिज़ पर किसानों ने भारतीय चैनल से बात की और इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत के CM रेवंत रेड्डी की क़ियादत में बेक वक्त ख़र्चों की माफ़ी पर खुशी का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि उन्हें बारीक अनाज पर 500 रुपये फ़ी कुंटल का बोनस दिया जाएगा। इस मौके पर किसानों ने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और बोधन के अरकान असम्बली सुदर्शन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया। అంతా మంచిగానే అవుతున్నది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేసింది అంత మేలుగానే మంచిగానే
500 రూపాయలు ఇంతవరకు పెంచలేడు. ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి నుంచి ఒక 500 బోనస్ పెంచిండు, మాకు 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసిండు, ఇదో మంచిగానే చేసిండు అని చెప్తున్నాను. మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇలా వచ్చింది, ఇంతకుముందు చేసిన దిశగా మన సురేన్ రెడ్డి గారు ఇలా మనకు ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చి అలాగే మన గడ్లకు కుంటలకు 500 రూపాయలు బోనస్ చేస్తుండు. ఖచ్చితంగా మనం మోసపోయి ఎవరికి అమ్మే అవసరం లేదు. సన్నకారు రైతులు ఉన్నాం కాబట్టి 500 రూపాయలు బోనస్ వస్తుంది. నాకు 1 లక్ష రూపాయలు మాఫ్ అయిపోయింది. నాకే కాదు ఇంకెంతో మందికి మాఫ్ అయిపోయింది. ఇక మళ్ళీ ఇక చేసుగా మనం అందరికి కలిసి ధన్యవాదాలు. ఎప్పుడు ఎర్రకుండా సుఖ సరళంగా ఉండాలి మా పంట शहर के आर्यनगर में सबस्टेशन पर बरक़ी सारिफिन के मसाइल के हल के लिए प्लेटफॉर्म का इनेकाद किया गया। इस मौके पर CGRF चेयरमैन ए नारायणा ने मशवरा दिया कि सारिफिन ऐसे प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाएं। शहर के आर्यनगर में सबस्टेशन पर बरक़ी सारिफिन के मसाइल के हल के लिए एक फोरम का इनेकाद किया गया। सारिफिन ने CGRF के चेयरमैन ए नारायणा के हमरा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मौके पर चेयरमैन नारायणा ने कहा कि हर साल बिजली सारिफिन के मसाइल के हल के लिए फोरम का इनेकाद किया जाएगा। सारिफिन इस मौके को अपने मसाइल के हल के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कुल 7 शिकायत मौसूल हुई और इनमें से 3 को हल किया गया और कहा कि प्लान तैयार करके बहुत जल्द हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके सब डिवीज़न के तहत आने वाले तमाम देहातों में जब भी कोई मसला दरपेश होता है तो उनके अफसरान वो अमला उनकी निगरानी करके हल करते हैं। इस मौके पर रामकृष्णा राजा गौड़ DE AD श्रीनिवास के हमरा अफसरान अमला दीगर भी मौजूद थे। దానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇక్కడ ఈ వేదికను ఈరోజు మనం ఏర్పరచుకోవడం జరిగింది. సో ఈ సందర్భంగా ఇది D7 D4 అంటే సెక్షన్స్ D7 D4 సెక్షన్లు, అది కాకుండా నాగారం సెక్షన్ కూడా దీని కింద మొత్తం 3 సెక్షన్లు దీనికి సబ్ డివిజన్ కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి ఈ సబ్ డివిజన్ కింద ఉన్న 3 సెక్షన్లో ఉన్న కన్సూమర్స్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి అప్లికేషన్ తీసుకొని దానికి తగిన పరిష్కారం ఏ రకంగా మనం వాళ్ళకి సాల్వ్ చేయడానికి ముందుకు పోవాల్సిన విషయం ఎట్లా ఉందో దాన్ని మనం క్షుణ్ణంగా క్షేత్రస్థాయిలో సెక్షన్ ఆఫీసర్సే కానీ మా సబ్ డివిజన్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ తర్వాత యొక్క లైన్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసి దానికి పరిష్కారానికి ఒక మార్గాన్ని మనం సూచిస్తాం. ఆ రకంగా ఈరోజు మనకి దాదాపుగా ఒక 7 కేసులు మనకు రావడం జరిగింది. 7 కేసులలో ఒక 3 కేసులు అంటే అవి చిన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఆ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనము అప్లికేషన్స్ తీసుకొని దాని మీద మనం రిటర్న్గా ఇచ్చేసి మళ్ళీ దానికి పరిష్కారం చూపించాలనే అంత టైం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా దాన్ని మనం అప్పటిదప్పుడు వాటిని సాల్వ్ చేసి ఆ సంబంధిత అధికారులకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది కాకుండా కొన్ని వర్క్ ఓరియంటెడ్ అంటే కొన్ని మనము तेलंगाना पेंशनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहर के धरना चौक पर धरना मुनाकिद किया गया। एसोसिएशन सदर राम मोहन राव ने मुतालबा किया कि उनके मुतालबात को रियासती हुकूमत हल करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो रियासती सतह पर एहतजाज किया जाएगा। तेलंगाना पेंशनर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम शहर के धरना चौक पर धरना मुनाकिद किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए नारे लगाए। इस मौके पर एसोसिएशन सदर राम मोहन राव ने कहा कि साबिक़ा BRS हुकूमत ने इंसाफ करने का वादा किया था और इंसाफ ना करते हुए मसाइल को नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि CM रेवंत रेड्डी ने कहा था कि वो इंतखाबात के दौरान उनके मुतालबात को हल करेंगे और आज भी वो सिर्फ एक मुतालबे को हल करने और बाकी मुतालबात को हल ना करने से संगीन मसाइल का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरी जवाब दे और उनके मुतालबात को हल करे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो रियासती सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन नायब सदर S हनुमान, एसोसिएशन के मेंबरान दीगर भी मौजूद थे।
అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్ల ఎదుట, అదేవిధంగా ట్రెజరీ అధికారుల ఆఫీసుల ఎదుట ఈరోజు ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రధానంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు అనేక హామీలు ఇచ్చింది. ఆ హామీలు అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. గత 10 సంవత్సరాల కాలంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో 3.5 డిఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇవాళ 5 డిఏలు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఈ 5 డిఏలు రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 1 డిఏ మాత్రమే విడుదల చేశారు. అదేవిధంగా పే రివిజన్ కమిటీ వేశారు, కానీ అది ముష్టి వేసినట్టు 5% విధిలిచ్చారు. మేము 30% తోటి ఆ పిఆర్సీని వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా నగదు రహిత వైద్యాన్ని అన్ని కార్పొరేట్ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో అమలు చేయాలని చెప్పేసి, క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము అనేక సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే ఆసుపత్రిలో చేరిన తర్వాత డబ్బులు కడితే తప్ప వైద్యం అందటం లేదు. వైద్యం అందిన తర్వాత కూడా ఆ డబ్బులు రియంబర్స్మెంట్ రావడానికి సంవత్సరాలు పడుతూ ఉంది. కాబట్టి క్యాష్లెస్ ట్రీట్మెంట్ని వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఈ కుబేర్లో కోట్లాది రూపాయలు పెన్షనరీ బెనిఫిట్స్ ఈరోజు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వాటిని వెంటనే రిలీజ్. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। किसान सीड डेवलपमेंट से इस्तीफा हासिल करे, सीड चेयरमैन अन्वेश रेड्डी। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को दी आईनी करारदाद। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायणा ने मार्केट कमेटी चेयरमैन व ट्रैफिक एसीपी के हमरा ट्रैफिक कंट्रोल रूम का लिया जायजा, गैर कानूनी तामीरात को हटाने की दी हिदायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553522